लुधियाना शहर में लोगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि मामूली तकरार को लेकर हथियारों के साथ किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसा ही एक मामला लुधियाना नूरवाला रोड पर रिंकू बाबा के आश्रम पर हमला होने पर देखा गया, जिसमें रिंकू बाबा ने भागकर अपनी जान बचाई। हाँ जी, जय बाबे जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं रिंकू बाबा जी गुरप्रीत नगर गली नंबर 4 ਨੂਰਵਾਲਾ रोड तो बोलता ਪਿਆ। साडा मंदिर है इत्थे ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਤੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਬਣਿਆ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ? ਇਹ ਜੀ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਾਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ? ਇਹ ਜੀ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਹਰ ਸੰਡੇ, ਜਿੱਥੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੂਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਡੈਕ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਸੱਦ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਦਾਤ ਮਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਛਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਾ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਆ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਇਹ ਕੁਛ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ। ਹੋਏ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਅਟੈਕ कर सकते जेड़े आंदे जाते। नुसरत जी की हुआ कि हमारे बराबर में रिंकू बाबा रहता है, बिल्कुल साइड में, ठीक है। तो रिंकू बाबा जो है वो गलत काम कराता है और करता है। गलत काम मतलब एक तो वो गली वालों को भी परेशान करता है, जैसे आज हमारे साथ किया, इस तरह किसी और के साथ भी पहले किया था, थोड़े दिन पहले। हर गली वालों के साथ रौब जमाता है, ठीक है। गली में गाड़ी खड़ी करता है, कुछ नहीं बोलते। मैं कि चल गुआंढी हैं, अच्छा नहीं लगता, गली गुआंढ में लड़ाई करना अच्छा नहीं लगता। हम तो यही सोचते रहते हैं। मैं इसलिए आई हूँ हॉस्पिटल कि अचानक ही उन्होंने पता नहीं कौन सी उनको बात खुंदक लगी या कौन सी, मेरे को नहीं पता कौन सी बात थी क्या थी। उन्होंने आज 50 बंदे इकट्ठे किए हुए थे, मेरे को तो कुछ भी नहीं पता। हमारे घर में मिस्त्री लगे हुए हैं, तो मैं अंदर कमरे में बैठी थी, मिस्त्री चले गए थे। तो जो मेरे पास बाबे ने जो बुलाए हुए थे, उन्होंने एकदम वो कोई इट्टा और चाकू पता नहीं क्या क्या लेके एकदम गेट के पे हमारे हमला कर दिया ऐसे। मैं तो अंदर बैठी थी। मैं तो आपकी पुरानी रंजिश थी कि पहली फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ ये कि हाँ, ऐसे तो कोई किसी के ऊपर करता नहीं हमला, ऐसे नहीं करता। सिर्फ ये है कि मैं गलत को गलत बोलती हूँ, बस। वो ये कहता है कि ये बहुत बोलती है। इससे पहले भी कोई आपने थाने में कंप्लेंट दी है? नहीं,
अभी तक तो दी नहीं, लेकिन मैं अब बाबे को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अब जहाँ तक भी जाना है वहाँ तक जाऊंगी मैं। ठीक है। नाम क्या है? रिंकू बाबा। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये है तो पंजाब के ही रहने वाले। ये हमारे कम से कम 15 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, 20 साल ही हो चले हैं। ये हमारी बराबर में रहते हैं। कहाँ पे बराबर में? कौन सा एरिया? नूर वाला रोड, गुरप्रीत नगर। तो अभी आप क्या चाहते हो? अभी मैं ये चाहती हूँ कि हमें पूरा इंसाफ मिले। मेरे बेटे के इतनी चोट आई है। मेरा बेटा सलून पे काम करता है, वो अचानक घर पे आया, उसको पकड़ लिया 10 बंदों ने। पहले हस्बैंड को पकड़ लिया, उनको एकदम, मैं तो ऊपर चिल्ला रही थी, अकेली थी मैं अकेली क्या करती? मैं बोल सकती हूँ, चिल्ला सकती हूँ या गाली दे सकती हूँ। देखो हैं, थाने में कंप्लेंट की? थाने में कंप्लेंट के लिए टाइम मौका ही नहीं मिला। हम गेट में अंदर बंद हो गए थे, हम 3 जने घर पे थे। चौथा मेरा बेटा आया बाहर से, तो उसको भी पकड़े, बच्चे को इतना मारा। कभी आपने थाने में कंप्लेंट नहीं की? कंप्लेंट हमने फ़ोन पे की थी, फ़ोन पे पुलिस वाले आए थे घर पे। ठीक है। उन्होंने बोला कि कोई नहीं मैडम जी, कोई बात नहीं। मतलब वो भी उल्टा हमें ही धमका रहे थे। मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ था, मेरे बच्चे बहुत परेशान थे, रो रहा था मेरा बेटा बाहर। मैं ऊपर से चिल्ला रही थी, कोई नहीं देख रहा था, सबको अपना डर था कि ये इतनी गुंडागर्दी। हॉस्पिटल में आए हो तो कितनी देर होगी आपको खड़े? मेरे को कम से कम 2-2.5 घंटे हो गए हैं। और देखो हॉस्पिटल वालों में पता नहीं क्या उनको दिया, क्या नहीं दिया है। उन लोगों ने मतलब जो हम जिनसे हमारे सच्चा पर्चा अभी तक नहीं कटा, अभी तक मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट नहीं शुरू हुआ। मैं आई हुई हूँ कम से कम 9 बजे से पहले की। अभी टाइम कितना हो गया? टाइम 12 बज गए हैं, देख लो। मैं साढ़े को 8 आई थी। दर्ज नहीं किया गया हैं, अभी कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और ऊपर से जो गार्ड हैं, जो बाहर गेट पे खड़े हैं, वो भी इतना बदतमीजी से बोल रहे हैं, बाहर चलो, बाहर चलो। मैं अपने बेटे के पास भी ना खड़ी हूँ, यहाँ पे कोई पानी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मेरा बेटा अंदर रो रहा है मेरे लिए, कह रहा मम्मी मेरे पास रहे, मुझे घबराहट हो रही है। हैं, वो सलून पे से आया, उसको पकड़ लिया, 50 बंदों ने पकड़ लिया। तो मैं ऊपर चिल्लाऊंगी, फिर मैं क्या करूँगी बताओ आप? मैं इतना परेशान हूँ इस टाइम। और इस बाबे ने हम इतना दुखी किया ना, बिल्कुल नाल का होके, कि इतना दुखी किया कि पूछो ना। जान के भाई का और भी किसी के साथ हुई है लड़ाई? पहले कुछ साल पहले पीछे हुई थी किसी के साथ, उनके साथ भी इस तरह मार कुटाई की थी बाहर घर में घुस के। एक ये बाहर से बंदे बुलाते हैं अपने आप, तो ये 2 भाई हैं सिर्फ। तीसरे भाई को इन्होंने मार कुट के भगा दिया था, दिल्ली चला गया वो। तो 2 भाई हैं सिर्फ। और ये इनके ये बाहर से बुलाते हैं चमची, मतलब बस ठीक है जो भी है, हम कुछ नहीं कहते। मैं क्या, हमें क्या लेना देना, यही सोचती मेरी। हाँ, मेरे को पता जरूर था, इनको पता चल चुका था कि मैं बोलने वाली हूँ, मैं बोल सकती हूँ। तो इसलिए मेरे बच्चों के मगर पड़ गए। बड़ी बात है, बराबर में गुआंढी हो के तू, यानी कि इस तरह की बात है। जानते हो जो भीड़ में जो भी आए थे, कोई किन्हीं बंदों को? हाँ, कल्ले बंदे को जानती हूँ। पता है आपको? नाम नहीं पता मेरे को, क्योंकि मैं ज़्यादा वास्ता मतलब नहीं रखती। जानती जरूर हूँ क्योंकि रात दिन आते हैं, वो नशे करते हैं। परेशान हम है ना बहुत ज़्यादा। गली बिल्कुल बंद करके रखते हैं। गली वालों से पूछ लो, अगर 4 घर मेरी साइड है ना, तो फिर आप कहना। मेरा नाम रिंकू है जी, मैं महल्ले 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨਗਰ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨਗਰ ਗਲੀ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? 4 ਨੰਬਰ ਗਲੀ 'ਚ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਚੌਂਕੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮੁੰਡੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਾਤ ਮਰਵਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ? ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਰੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ नहीं जी नहीं, ये मार के भज गए। वहीं जब संबंधित अधिकारी जी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि तफ्तीश जारी है, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी कर दी जाएगी। अब देखना ये होगा कि क्या कार्रवाई की जाती है।